السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج کا روزہ ادا کرنے کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کی توفیق سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان کے اندر بھی نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کے مضامین کا خلاصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج ایک سپارہ ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور آئندہ سے روٹین ہوگی کہ روزانہ ایک سپارہ وہ ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ آج 5ویں تراویح ہے، اور جو سپارہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ 6 ہے، لا یحب اللہ، اور یہ مکمل سپارہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سورہ النساء کی آیت نمبر 148 تھا 176 ہوگی، اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 1 تھا آیت نمبر 82 یہ ڈسکس ہوگی۔ اور اس میں جو سب سے پہلا موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ وراثت ہی سے متعلق ایک ٹاپک ہے۔ وراثت جو پہلے بھی ہمارا گزشتہ کل موضوع تھا، اسی سے متعلق ایک ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں کلالہ، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو فوت ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے والدین بھی نہ ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جن کے تو بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا سورہ النساء رکوع نمبر 2 میں۔ تو آج کلالہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی اس شخص کے معاملے میں کہ جو فوت ہو گیا اور نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں۔ کہو، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی۔ ایک آدمی مر گیا، اولاد اس کی کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں، تو اس کے ترکے میں سے آدھا ملے گا اس کی بہن کو۔ اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، ان کی بہن مر گئی تو اب اس کی ٹوٹل جو جائیداد ہے اس کا وارث بھائی ہوگا، اگر اس بہن کے نہ بچے ہیں اور نہ بہن کے والدین ہیں۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے ایک کام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس شخص کی اولاد نہ ہو اور جس کے والدین نہ ہو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔
उसके बाद सूरा माइदा शुरू होती है। ये मदनी सूरत है और माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। तो ये जो लफ्ज है ये भी इसका मौजू नहीं है, बल्कि सूरा माइदा के तकरीबन आखिर पर जाकर एक आयत आती है कि जिसमें जो हजरत ईसा के हवारी थे वो कहते हैं हजरत ईसा से, क़ाल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। क्या मूसा, ऐ ईसा, क्या तेरा रब ये इस्तिताअत रखता है कि वो आसमान से दस्तरखान नाजल करे और हम उस दस्तरखान से खाएं। तो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है माइदा, तो इसी लफ्ज को इस सूरत का नाम करार दिया गया है, ये इसका मौजू नहीं है। इसमें जो सबसे पहले एक बड़ी अजीम हदायत दी गई है वो हदायत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो और बदी के कामों में, बुराई के कामों में एक दूसरे से अलहदा हो जाओ, बुराई के कामों में तावन मत करो। ये एक बहुत बड़ा असूल अल्लाह ताला ने बता दिया। अब ये जो नेकी का काम है ये चाहे तुम्हारी मुखालिफ बरादरी का कोई बंदा कर रहा है, चाहे तुम्हारा दुश्मन कर रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई काफिर भी कर रहा है, अगर कोई दूसरी पार्टी का बंदा कर रहा है तो तुमने उसके अंदर उसके साथ ताउन करना है, उस परहेजगारी के काम के अंदर उसके साथ दस्ते ताउन बढ़ाना है। और अगर कोई बुरा काम कर रहा है और वो बुरा काम करने वाला चाहे तुम्हारा सका भाई है, चाहे तुम्हारे वालिदैन है, चाहे तुम्हारी बरादरी है, चाहे तुम्हारा खानदान है, चाहे तुम्हारी पार्टी है, चाहे तुम्हारा मसलक है, और यहाँ तक कि चाहे तुम्हारे दीन के अंदर तुम्हारा वो मानने वाला है, तब भी बुरे काम के अंदर तुमने उसके साथ ताउन नहीं करना। अच्छा, जब सियासत के अंदर भी ये होता है कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मिलती है फ़लस्तीन के मौजू पर, कश्मीर के मौजू पर, और उनसे कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, वो कोई कश्मीर के हवाले से या वतन के दिफा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से कोई काम करते हैं, तो जमात इस्लामी उनके साथ बैठती है, ताउन करती है। तो लोग तनकीद करते हैं कि ये तो करप्ट है, तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? तो वो इस असूल के तहत देते हैं कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, और बुरा काम करने वाला वो चाहे कितना करीबी है उसके साथ कोई ताउन नहीं करना। ये बहुत बड़ा एक असूल अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए रख दिया है। और हकीकत ये है कई मौके पर, ख़ास तौर पे इलेक्शंस में, हम लोगों के पास जाते हैं कि यार फलां बंदा बहुत बुरा है, वो सूदखोर है, ज़ानी है, शराबी है, तो तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? तो लोग आगे से पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मेरी बरादरी का है, मेरे महल्ले का है, मेरे खानदान का है, मेरा जानने वाला है, तो ये बिल्कुल गलत दलील है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सही काम के अंदर ताउन करना है और गलत काम के अंदर ताउन नहीं करना, चाहे गलत काम करने वाली तुम्हारी सकी माँ ही क्यों ना हो, सखा बाप ही क्यों ना हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ उन चीज़ों की फहरिस्त बताई है कि जो चीज़ें हराम है, जिनको आप खा पी नहीं सकते। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम पर हराम किया गया, नंबर 1 मुर्दार, वो जानवर जो खुद ब खुद मर जाए। नंबर 2 खून, खून आप पी नहीं सकते। नंबर 3 सूर का गोश्त, ये भी हराम है। नंबर 4 वो जानवर कि जिसके ऊपर ज़िबा करते हुए
अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, उस जानवर को खाना हराम है। अगला, जो गला घुटकर मरा हो, यानी कि रस्सी बंधी हुई है, खुद ब खुद वो टाइट हुई और वो जानवर गला घुट के मर गया। उसके बाद जो चोट खाकर मर गया, जानवर जा रहा है, उसको चोट लगी है और वो खुद ब खुद मर गया, आपने उसको ज़िबा नहीं किया, तो इसको खाना भी हराम है। इसी तरह से वो जानवर जो बुलंदी से, छत से, पहाड़ी से गिरे और गिरकर खुद ब खुद मर जाए, उसका गोश्त खाना भी हराम है। अगले नंबर पर वो जानवर जो टक्कर खाकर मरे, किसी दूसरे जानवर ने टक्कर मारी और वो जानवर मर गया, आपको ज़िबा करने की मोहलत नहीं मिली, तो इसको भी खाना हराम है। अगले नंबर पर वो जानवर कि जिसको किसी दरिंदे ने फाड़ा है, किसी दरिंदे ने शिकार किया है, उसका खाना भी हराम है। हाँ, अगर दरिंदे ने फाड़ा, आपने उसको पा लिया और फौरी तौर पर ज़िबा कर लिया, तो फिर इसको खाना हलाल है। इसी तरह से अगला, वो जानवर जो किसी आस्थाने के ऊपर ज़िबा किया गया हो, किसी दरबार के ऊपर, किसी और जो है वली की कब्र के ऊपर या किसी आस्थाने के ऊपर ज़िबा किया गया हो, उसको खाना भी जो है वो हराम है। इसी तरह से पांचों के जरिए से किस्मत का हाल मालूम करना, ये भी क्या है, हराम है। तो ये अल्लाह ताला ने 8 वो चीजें बता दी कि जो हमारे लिए हराम है। तो ये देखें अल्लाह ताला कितने खोल खोल के ये अहकामात हमारे लिए बयान करता है। और फिर पहली ही आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो आयत का टुकड़ा मैंने शुरू में तिलावत किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ईमान वालो वादों की पाबंदी करो, वादों को पूरा करना ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर तफसीलन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ मैंने इशारा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला एक बड़ा दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। अच्छा, हम जो हमारे मुर्दे हैं उनको आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से दफन करते हैं, कब्र खोदते हैं और उस कब्र के अंदर दफन कर देते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये जो कब्र के अंदर मुर्दे को दफन करना है, इसका आगाज कैसे हुआ? तो इसका आगाज बहुत पहले हुआ। अल्लाह ताला आज के सबक के अंदर इसका वाकया बयान करते हैं। और वो वाकया क्या है? कहते थे आदम के 2 बेटे थे, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बुनियाद पर हुआ कि उन दोनों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। पुराने वक्तों में, पहले अंबिया के दौर में ये होता था कि जो जानवर कुर्बान किया जाता था उसका गोश्त खाते नहीं थे, बल्कि एक जगह पर रखते थे, आग आती थी, उस गोश्त को जला देती थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई होती थी। तो एक बेटे की कुर्बानी कबूल होगी, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं ना हुई, चाहिए तो उसका ये था कि वह अपनी इस्लाह करता, लेकिन उसने क्या किया, उसने दुश्मनी इख्तियार की दूसरे भाई से कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई थी, और उसको गुस्से के अंदर आकर कत्ल कर दिया। अब कत्ल कर दिया, उसकी लाश सामने पड़ी हुई है। अब वो परेशान बैठा हुआ है कि मैं इस लाश का क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फिर 2 फरिश्तों को भेजा, वो 2 कव्वों को भेजा। वो कव्वे वहां पर आए और आकर वो भी आपस में लड़े। एक कव्वा उनमें से मर गया, दूसरे कव्वे ने क्या किया कि अपनी चूंच के साथ और अपने पंजों के साथ जमीन को खोदा और दूसरे कव्वे को जो मर गया था उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया।
अब ये जो भाई था, जो कातिल था, वो कहने लगा, हाय मेरी बदनसीबी, मेरी बदकिस्मती कि मैं इस कव्वे से भी कम अकल हूं। तो फिर उसने इस रहनुमाई को कबूल करते हुए अपने मुर्दा भाई को दफन किया। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा असूल दिया इस वाक़े के तनाजर में। यानी पहला कत्ल हुआ, दुनिया की अभी बिल्कुल इब्तदा है, और अल्लाह ताला ने एक असूल दे दिया। और वो असूल क्या दिया कि वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नासा जमीआ। अल्लाह ताला कहता है, जिसने किसी एक जान को कत्ल किया, याद रखे यहाँ पर मुसलमान नहीं कहा, बल्कि जान कहा, फर्द कहा, इंसान कहा, कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया या जमीन में फसाद फैलाया, तो ये ऐसे ही है कि गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना। और ये जो कत्ल का मरहला होता है, ये यकदम नहीं आ जाता। कल भी आपने पढ़ा था कि जो जानबूझकर कत्ल करता है, अल्लाह ताला कहता है कि उसकी सजा क्या है। उसकी सजा ये है कि वो आखिरत के अंदर जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा जलेगा। और यहाँ अल्लाह ने क्या कहा कि एक इंसान को कत्ल करना ये ऐसे है कि गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और इसके मुतबादल दूसरा क्या अल्लाह ताला कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नासा जमीआ। जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, ये ऐसे ही है कि गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब ये जान बचाना क्या हो सकता है कि कोई मरने वाला है, उसको आप इलाज करवाकर उसकी जान बचा दें। किसी को खून की जरूरत है, आप खून देकर उसकी जान बचा दें। किसी के पीछे डाकू लगे हुए हैं, कातिल लगे हुए हैं, आप उसकी हिफाजत करके उसकी जान बचा दें। तो ये इतना बड़ा काम है कि गोया आपने एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जान बचा दी। तो ये बहुत अहम सबक है कि जो अल्लाह ताला ने आज की आयत के अंदर दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला एक और हुक्म देते हैं, और ये वो हुक्म है कि जिसके अंदर हमारे मौजूदा जमाने के अंदर लोगों ने बहुत इख्तलाफ किए। और वो हुक्म क्या है? आयत सुने। अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीले का हुक्म देते हैं। अब यहाँ पर हमारे मुआशरे में दो ग्रोह बन गए। एक वो कहता है कि हर किस्म का वसीला, हर किस्म की इस्तेआनत जायज है, और दूसरा ग्रोह ये कहता है कि किसी किस्म का भी वसीला जायज नहीं। जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला और उसके हबीब ने 5 किस्म के वसीले जायज रखे हैं। सबसे पहला जो वसीला आप इख्तियार कर सकते हैं वो क्या है? अस्माए हुस्ना का वसीला, कि आप जो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम है उनके वसीले से अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ये अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम है, पाकीज़ा नाम है, बेहतरीन नाम है, फदऊहु बिहा। बस तुम उन नामों की बरकत से, उनके वसीले से अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से दुआ करो। दूसरे नंबर पर अल्लाह
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، صحیح معنوں میں تبرکات، ان سے وسیلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے مختلف روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوغا، ایک کپڑا وہ محفوظ تھا، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ کپڑا جو تھا اس کو دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ اس کو پلایا جاتا، اور اس سے کیا ہوتا، اس آدمی کو، اس مریض کو شفا مل جاتی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال وہ بہت سے لوگوں کے پاس محفوظ تھا، وہ بھی جو بیمار ہوتے ان کے لیے پانی رکھا جاتا، اس میں وہ بال ڈبویا جاتا اور اس مریض کو پلایا جاتا تو اس کو شفا مل جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور پھر وہ جو وسیلے والی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ اس دعا کے ذریعے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگ سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کہ جو آپ کے نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے، یا اللہ میں نے یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور یہاں پر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سب بیماروں کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو آج ہم نے روزہ رکھا ہے، جو تلاوت کی ہے، اور یا اللہ یہ جو قرآن پاک کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں، اس کی برکت سے مجھے بھی شفا عطا فرما دے، اور یا اللہ سب مسلمانوں کو شفا عطا فرما دے، آمین۔ تو آپ نیک کاموں کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں دوسرے سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو نماز اور صبر سے استعانت، مدد، وسیلہ طلب کرو۔ تو یہ چوتھی قسم ہوگی۔ اور اس میں آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں کچھ لوگ ایک غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے جو اچھا کام کیا تم ان اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو۔ تو وہ سارے ایک ایک اچھے کام کا واسطہ دیتے ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جایا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب پہلا واسطہ دیتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے، دوسرا واسطہ دیتا ہے، وسیلہ دیتا ہے، مزید سرک جاتا ہے، جب آخری واسطہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پتھر اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس میں سے وہ تینوں لوگ گزر جاتے ہیں۔ تو اپنے اچھے کاموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، کسی مردہ سے دعا کروائی نہیں جا سکتی، زندہ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میری یہ مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت عرصہ بارش نہ ہوتی تو وہ کیا کرتے، اپنی خلافت کے دور میں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے اور ایک کھلے میدان کے اندر چلے جاتے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور کیا کہتے، اے اللہ تعالیٰ
जब तक तेरे हबीब जिंदा थे हम उनसे कहा करते थे, वो दुआ करते थे और तू बारिश नाजल कर दिया करता था। तो अल्लाह ताला अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब उनका विसाल हो चुका है। तो अब हम उनके चचा हजरत अब्बास को लेकर आए हैं। तो अल्लाह ताला हम इनके वसीले से, इनकी दुआ की बरकत से, इनकी मौजूदगी की बरकत से तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस कहत को खत्म फरमा और बारिश को नाजल फरमा दे। तो ये आपने देख लिया कि 5 वसीले जायज हैं। उसके बाद एक बड़ी अहम बात अल्लाह ताला ने आज के सबक के अंदर कही है, और वो अहम बात क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के नाजल करदा अहकामात के मुताबिक, अल्लाह की नाजल करदा तालीमात के मुताबिक, अल्लाह की नाजल करदा किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो लोग फासिक हैं, वो लोग जालिम हैं। और आखिरी फतवा अल्लाह ताला का कितना बड़ा है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग काफिर हैं। अब ये कितना बड़ा फतवा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने, आपने अपनी जिंदगी के जितने इनफरादी फैसले करने हैं वो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में करने हैं। शादी कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, बच्चों को तालीम कैसे देनी है, अलगर्ज जितने भी फैसले हैं हमारी इनफरादी जिंदगी के, वो कुरान पाक के, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करने। और दूसरे नंबर पर जितने इज्तिमाई मामलात हैं वो भी अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक करने हैं। अब यहाँ पर ठहर कर, यहाँ पर रुक कर जरा जायजा लें, कम क्या हमारे मुआशरे में ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसके अपोजिट होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि सूद को खत्म करो, हमारे मुआशरे में सूद नाफज है। अल्लाह ताला कहते हैं बेपर्दगी को खत्म करो, हमारे मुआशरे में बेपर्दगी नाफज है। अल्लाह ताला कहते हैं झूठ को खत्म करो, हमारे मुआशरे में झूठ के बगैर चला नहीं जाता। अल्लाह ताला कहते हैं रिश्वत खत्म करो, हमारे मुआशरे में रिश्वत के बगैर आपका कोई काम नहीं होता। इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे सारे मामलात मेरे मुताबिक होने चाहिए। हम कहते हैं नहीं, ट्रम्प के मुताबिक होंगे। तो ये क्यों है? इसलिए है कि हमारे हुक्मरान गलत हैं, वो गलत फैसले करते हैं। तो अब ये जो हुक्मरान है, इनको, इनका जो साथ देते हैं, इनको जो वोट देते हैं, इनके जो पीछे चलते हैं, इसका मतलब है कि वो भी इस जुर्म के अंदर बराबर शरीक है। और कुरान पाक का फतवा क्या है कि वो फासिक है, वो जालिम है, और कितना बड़ा फतवा कि वो काफिर है। तो हम सबको चाहिए कि हम इसकी इस्लाह करें। और ये जो जालिम हुक्मरान है, इनके बारे में कुरान का फतवा ये है कि ये काफिर है, इनसे जान छुड़ाए और अच्छे लोगों का साथ दें और उनको हुक्मरान बनाए। उसके बाद जो अगला अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अगर तुम ये करोगे, मेरे अहकामात को नाफज करोगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं वलो अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये तौरात, इंजील या उस किसी भी किताब के मुताबिक अपने मुआशरे का निज़ाम बनाते, उसको नाफज करते, जो किताब मैंने नाजल किया है, तो मैं क्या करता? मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, मैं इनको आसमान से भी रिज़्क देता और जमीन से भी इनके लिए रिज़्क निकालता। क्या मतलब है कि हर तरफ से बरकत ही बरकत होती। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो अन्नहुम आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आए और क्या करें? तकवा इख्तियार करें,
अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलें, जो अल्लाह ने कहा वो करें। जैसे वो रुक जाए तो मैं क्या करता है, इनके लिए आसमान से भी बरकतें नाजल करता और जमीन से भी बरकतें निकालता। और अगर ये काम ये ना करें तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आजकल हो रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौराता वल इंजील वमा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम अहले किताब, अगर तुम अल्लाह की नाजिल करदा किताब को नाफज नहीं करोगे तो लस्तुम अला शैइन, तो तुम्हारी कोई वक़्त नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हें दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं देगी। अब कितना जो है वो मुनासिब मामला है इस वक्त जो हमारे साथ दरपेश है इस आयत की रोशनी में, कि इस वक्त किसी मुसलमानों की मुआशरत में अल्लाह की किताब नाफिज नहीं है, तो बदले में क्या हो रहा है कि मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं। गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, बोस्निया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है और जो हुआ वो इसकी वाज़े दलील है। तो हम सब का ये फर्ज है कि हम अल्लाह की किताब को नाफिज करने के लिए कोशिश करें। और अल्लाह ताला ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तो हम अल्लाह ताला से ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन।